Good morning, friends. Today I am going to take a new part of plus one physics chapter mathematical tools trigonometry. So maximum things are new for you. That's why I will give today lecture slowly. See, with this table you are very much familiar. Sine, cos, tan values for an angle 0, 30, 45, 60 and 90. What you are doing? You are writing first of all 0, 1, 2, 3, 4. Then you are dividing with 4, 4, 4. Then you are taking under the root. Right? This value is 0. This is 1 by 2. This is 1 under root 2 by 2. By rationalizing, it will be 1 by under root 2. It is under root 3 by 2 and it is 1. These are the values for a sine 0 degree 0, 30 degree 1 by 2, like that. For cos values, start from back. This is 1, this is under 3 by 2, like that. Last value 0. For a tan value, divide sine by cos. You know, tan is sine over cos. So 0 over 1, 0, like that. 1 over 0 is infinity, right? For a cot value, reverse of this. Infinity will come here, under root 3 here, 1 here, 1 by root, like that. Secant, that is a cosecant, first of all we will take, then sine reciprocals, then reverse value. This way the table you can draw. You are very much familiar with this quotation, Pandit Bhadri Prasad Har Har Bole. Okay. Now I am coming to the main thing. You know, this is the coordinate axis. This is the plus x minus axis, plus y axis minus y axis, right? If we will start 0 degree from this side, then 0 to 90 degree will be in this area. This is called coordinate, first coordinates, right? There are 4 coordinates, first one, second, third, and this is the 4th coordinate. Okay, beta? So 0 to 90 degree in this first quadrant, 90 to 180 degree in this quadrant, 180 to 270 in this quadrant, and 270 to 360 in this quadrant. So this line is for 0 degree and 360 degree both. Is it clear? Now see, if you will understand that this is the plus axis, then this side, the length, the distance will be positive and this side will be positive, right? Now all the identities, like this is for sine, this is for cos, this is for tan, and you know, sine inverse, cosecant, secant and cotangent, that will be reverse of this, reciprocals. So for the sine value, we know there are 6 identities: sine, 6 trigonometric ratios, sine, cos, tan, cot, secant, cosecant. So sine will be perpendicular over hypotenuse. This is perpendicular, that is positive, and hypotenuse does not matter. ठीक है, hypotenuse का sign matter नहीं करेगा, सिर्फ base और perpendicular का matter करता है. ठीक है. So sine is P over H. This is positive and this does not matter, means this value is positive. This way base is also positive. So all the trigonometric ratios are positive here. Meaning is, चाहे तुसी साइन द 10 डिग्री देखोगे वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चाहे कॉस द 10 देखोगे, इधे बीच को इसके बीच में कोई भी एंगल है ना, जैसे साइन 40 देख लिया, कोटेंजेंट 40 देख लिया, तो इस क्वाड्रेंट में पड़ा तो सारी इस वैल्यूज पॉजिटिव है. तो इस तरह से
अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखें बेटा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये है ना, और अगर हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करें तो बेस नेगेटिव बन रहा है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बन रहा है। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। हाइपोटेन्यूज का साइन मैटर नहीं करता, परपेंडिकुलर और बेस का देखा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ ऑल पॉजिटिव है, सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। ओबियस है, साइन पॉजिटिव है उसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। टेन पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, कॉस तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस चीज को याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले की तरह एक कोटेशन है, ए फॉर आफ्टर स्कूल द कॉलेज। फर्स्ट अल्फाबेट फॉलो, ए फॉर ऑल, S for sin, T for tail and C for cos। तो आपको ये पता लग गया कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो आपको कोई बोलता है cot, ठीक है, यहां पे 200 तो किस क्वाड्रेंट में पड़ा, 180 और 270 के बीच में यहां कहीं होगा 200। और cot की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है तो आंसर पॉजिटिव है। लेकिन अगर साइन 200 कोई पूछता है तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव है नहीं यहाँ, तो ये नेगेटिव है। चलो इनको हम धीरे धीरे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अच्छा ये आपके बात ये समझ आ गई होगी, आफ्टर स्कूल द कॉलेज आपको पता लग गया। ठीक, जब भी हम कभी एंगल लेंगे तो हम इस तरह चलेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से 0 से 90, 90 से 180 हुआ, 180 से 270 हो गया। ओके, अगर हमने उल्टा चलते हैं ऐसे नीचे तो माइनस से शुरू हो जाएगा, दिस इज माइनस थीटा एंगल्स, है ना। कोई कहता है -10 डिग्री, तो -10 कहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा इस क्वाड्रेंट फोर्थ में, और इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब मैं फार्मूलोस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले इनका यूज कैसे करने वाला हूं ये आपको बताने वाला हूं। राइट, एग्जांपल लेता हूं, जैसे किसी ने कहा साइन माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक, माइनस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, 0 माइनस थीटा, समझा रहा है बेटा। तो इस एंगल को जैसे आपने डिवाइड किया, वो देखो कि 0 में किया, 90 में किया, 180 में, 270 में, या कौन सी लाइन पे आ रहा है, 0 डिग्री, इस लाइन पे। ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी पड़ी है ना, तो इसमें कोई अल्टरेशन नहीं करनी है इस लाइन। मतलब क्या है, अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। साइन 0 डिग्री का मतलब साइन इस 0 की वजह से जो हमने ये डिवीजन किया, साइन में कोई अल्टरेशन नहीं होगी, साइन साइन ही रहेगा, और थीटा की जगह थीटा लग जाएगा। और ये साइन माइनस थीटा हमने देखा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, इसमें ये नेगेटिव वैल्यू है, इस तरह से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको बहुत इजी समझ आएगा। जैसे मैं साइन -30 डिग्री की वैल्यूज पता करनी है, तो सबसे पहले आप समझो कि ये कौन से, इसको एक बार डिवाइड कर लेते, इनको डिवीजन कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी कौन से क्वाड्रेंट में है, आप देख रहे हो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा। ये 0 कह रहा है तो पहले प्लस माइनस देख लिया क्वाड्रेंट्स। ठीक है, दूसरा ये डिवाइड जो किया आपने 0 में किया, तो आपने देखा 0 क्या करता है, नो अल्टरेशंस करता है, इस लाइन पे कोई अल्टरेशन नहीं होगी, तो साइन का साइन आ गया एंड एंगल साथ में। अब ये माइनस से खत्म हो चुका है, ये सिर्फ एंगल लेना होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, माइनस साथ में लगा तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझा रहे हैं। जैसे अगर मैं अब कॉस माइनस थीटा लेता, टेन माइनस थीटा लेता, कॉट माइनस थीटा लेता, कॉसिकेंट माइनस थीटा ले लेता,
सीकेंट माइनस थीटा। तो ये मेरे पास फार्मूले बनने वाले। कॉस माइनस थीटा, ये सब पता लगा है माइनस है, ये इस क्वाड्रेंट में है, इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, ये कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। ठीक है, क्वाड्रेंट से पहले साइन देख लिया। और जीरो में ये डिवीजन होगा, जीरो माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगी, मतलब आपके पास कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा आ जाएगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल मैं समझाऊं आपको। तो ये मैं टेबल यहां से हटा रहा हूं बेटा, देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे cos माइनस 30। ठीक, तो ये कह रहा है cos यहां तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ गई वैल्यूज, और cos 30 की देखिए, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हो, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अगले टेबल की बात करूंगा, सेकंड वाली। I will send you notes accordingly, you have to work, right? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सेकंड cos 90 माइनस थीटा, ऐसे साइन से स्टार्ट करते हैं। चलो साइन से, पहला आपको ये देखना है बेटा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव है। 90 लिखा है, 90 कह रहा है कि चेंज होगा, चेंज होगा, 90 पे भी चेंज होगा और 270 में भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन लिखा है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, सीकेंट कॉसिकेंट में इंटरचेंज होगी, कॉसिकेंट सीकेंट में, टेन कॉट में होगा, इस तरह से चेंज होगी। मैं अभी भी बता रहा था ना, साइन की वैल्यूज लिखी हुई है तो कॉस की उल्टी आ जाएगी, सीकेंट की लिखी हुई है तो कॉसिकेंट की उल्टे रिवर्स से लिख देनी है, टेन की लिखी है तो कॉट की उल्टी। ठीक है, ये लॉजिक है। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और पता लगता जाएगा बच्चों। तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, तो पहले देख लिए पॉजिटिव वैल्यू है, हो गया। 90 कहता है कि चेंज करो, किसको? साइन को चेंज करो, कॉस में कर दिया एंड थीटा साल लगा दिया, फार्मूला बन गया। अब जैसे कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसिकेंट है, सीकेंट है, वही वैल्यूज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट? ओके, देखो बेटा, अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 तो कह रहा है सब चेंज हो, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसिकेंट सीकेंट में एंड सीकेंट कॉसिकेंट में चेंज हो गए। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिग्री सबके साथ थीटा 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 लगा। क्लियर? समझा रहा इतना सब? चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलो इसका तो बाद में कर लेंगे, यहां पे आते हैं। अगर साइन 90 प्लस थीटा रखा, ठीक है, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया? 90 प्लस, तो 90 प्लस इस सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नहीं। तो ये जो साइन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये जो कोसिकेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। ठीक, दूसरा 90 है तो 90 में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंट में एंड ये कॉसिकेंट में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो अपने ध्यान से, मैं साइन 120 लिख रहा हूं, ठीक है, इस 120 को हम 90 प्लस 30 कर सकते हैं ना बेटा? अब देखो, अब इस 90 को उड़ाना है,
तो पता लग रहा है कि साइन का कॉज बनाना है। फिलहाल हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट बड़ा, ये बड़ा ये क्वाड्रेंट, इसमें ये वैल्यू पॉजिटिव, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी। और ये साइन 90 कहता है साइन को कॉज बना दो, मैंने बना दिया, 90 का काम खत्म हो गया, 90 का खत्म हो गया। और ये 30 डिग्री एंगल साथ में लग गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक, ये समझा रहा है बेटा। अगर मैं यही एग्जांपल cos के लिए लेता, ठीक है, मान लो ये मैं cos के लिए ले लेता, ये आता cos 120, तो इस तरह से लिखता। अब cos इस क्वाड्रेंट में सेकंड में 120 इसमें है बेटा, इसमें ये माइनस होता तो माइनस लग गया। ये कहता है कि cos को साइन में कन्वर्ट कर दो, कर दिया, 30 डिग्री ले लिया और इसकी वैल्यू 1/2 होती है और ये आंसर आ गया। ठीक, समझा है। अब अगली वैल्यूज देखते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, देख रहे हैं आप, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा, ये फिर सेकंड में है, तो सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, फिर और सारी वैल्यूज माइनस होंगी। 180 कहता है ये मैं अल्टर नहीं करूंगा, ठीक है, 0 360 नहीं करता, 180 नहीं करता, तो ये नहीं कर रहा, जैसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वैसे ही लिखी जाएगी। जैसे मैं यही एग्जांपल लूं cos 120, देखो इसका आंसर ये आया, यही आएगा। बट अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता 180 माइनस 60, देख रहे हो बेटा, 180 माइनस 60 120 बना, क्वाड्रेंट कौन है, यही है, सेकंड ही है ये तो, और सेकंड में cos माइनस होता है। 180 कहता है मैं चेंज नहीं करने वाला, मैंने कहा ना करो, ठीक है, cos का cos रहने दिया एंड 60, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और ये देखो माइनस 1/2, वैसे ही वैल्यू लग रहा है बेटे, पता समझ आ रहा है। ओके, अब मैं लूंगा, नाउ आई एम टेकिंग साइन 180 प्लस थीटा, ओके, 180 प्लस थीटा, सबसे पहले देखना क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस थीटा, दिस वन, here is tan and cot is positive one, tan and cot is positive, others are negative, done। 180 में डिवाइड किया हुआ है, तो ये कहता है मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, इस लाइन पे कोई चेंज नहीं है, तो साइन की सारी वैल्यूज ऐसे ही, जैसे साइन साइन में आ गया, ठीक है, इस तरह से सेम है, कॉसिकेंट कॉसिकेंट में ही आ गया और सीकेंट में आ गया, समझ आ गया। 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ है माइनस थीटा, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही चला गया, इसमें फिर टेन और कॉट ही होता है पॉजिटिव और बाकी वैल्यूज नेगेटिव होती है। बट 270 कहता है मैं चेंज करूंगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कॉसिकेंट को सीकेंट में, सीकेंट को कॉसिकेंट में, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। जैसे आप 270 प्लस थीटा एक और करना था हमें, उसको ले लेते हैं 270 प्लस थीटा, ठीक, 270 प्लस थीटा किसमें क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव है। 270 है तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरह से, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको बेटा। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, इसी तरह से कॉस, इसी तरह से टेन, कॉट, सीकेंट, कॉसिकेंट एंड सीकेंट, ठीक है, एंगल्स फिर वही। अब देखते हैं ये सबसे पहले कौन क्वाड्रेंट पड़ता है। 360 इज हियर माइनस, फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट, कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, और 360 कहता है मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, और इस तरह से ये वैल्यूज सेम में लिखी जाएगी।
आई होप कि एग्जाम्पल पता लग गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स लेके बता रहा हूं, बहुत आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका, किसी ने मेरे को पूछा कि साइन 210 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं बेटा, साइन 180 प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं ना। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, 210 थर्ड क्वाड्रेंट है ना, 180 के बाद पढ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल दी कॉलेज, ये तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव लाइन। इसने कहा मैं साइन को साइन ही रहने दूंगा और ये 30 डिग्री और वैल्यू आ गई -1/2। समझ आ रहा है इतना सा? देखो इसी को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इस तरीके से, इसको साइन 270 -60 भी लिख सकते हैं, है ना। 270 -60 बन गया 210। क्वाड्रेंट तो वही है, सेकेंड तो माइनस ना क्या, 270 कहता है मैं साइन को कॉस बना दूंगा, मैंने कहा बना दो, और ये 60 कॉस 60 की वैल्यू फिर 1/2 होती है और आंसर फिर वही आता है। इस तरह से आप इन सबको समझ सकते हो बेटा। और मैं कुछ नोट्स में आपको आंसर भेज रहा हूं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपने खुद सॉल्व करने हैं, जैसे cos 220 की वैल्यूज है ना, 245 की वैल्यू सॉरी, एंड साइन 210 की वैल्यूज। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल भेजे, उनको करो बेटा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।